whatever is left. Okay. So, in the intellect, all the work is done. So, Yes. in 76, the karmic accounts are finished. Yeah. With the family, with the world. So for him, Program. जो राम बाप के लिए 76 में सारा कर्मिक अकाउंट खत्म हो गया था क्या? जो भी था अपने परिवारजनों से, दुनिया से। बाप का पहले खत्म होगा कि पहले बच्चों का बाप खत्म कराएगा? Baba is telling, will father finish off his first, or will he make the children finish their karmic account first? Baba is asking by the children. Huh? The children. माता जी बोल रहे हैं बच्चों का। तो फिर Okay, that might be a translation thing. But it's in BCD 305. It says, in the Golden Age, who belonged to the deity religion, those who were Indians, those who settled in India from the beginning to the end, they did not go to the other countries. Who are you talking about? They did not go to the other countries. The ones who settled in India. Yes. The ones who never went to the other. Countries. Okay. That is what the BCD the translation is. Okay. So what's the problem? So We have, lots of us have gone to other countries. yeah, even father will go to the other countries. So why is it says that? It is for the Rudra Vijayamala songs, like Lakshmi, who will never deviate from the stem. Okay, and we are Kashmir. Okay, because sometimes he says deity for both. बाबा जैसे जो दूसरे धर्म में जाते ही नहीं तो आखिर देवता कौन है? जो राधा जैसी आत्माएं हैं या ऐसे कौन है जो दूसरे धर्म में जाते ही नहीं? जैसे छोटी मम्मी या उनका ग्रुप है वो तो दूसरे धर्म में तो जाएंगे ही नहीं, पक्के कांड में ही रहेंगे, तने में ही पार्ट बजाएंगे। तो वो वास्तव में असली देवता है या राम के पिछाड़ी जो है वो असली देवता है? क्योंकि देवता तो दोनों के लिए बोलते हैं। अष्टदेव है उनके साथ 8 विजयमाला से जुड़े हुए हैं। जब तक वो जुड़ते नहीं है तब तक वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं कहे जाएंगे। कौन? अष्टदेव। हाँ जी, विजयमाला बनती है युगल मणकों की। Baba is telling the Ashtadevas, they will become pravrutti mark. It is It is just like household. household. Yeah, they will become those of the household when their supportive souls from the Vijayamala, when they pair with them. Till then, they cannot be called as Pakka households. That is when. So both have to pair up. Both have to pair up. They only माना ही प्रवृत्ति मार्ग। deity means the household, where two are required. So, the bombs of defamation often is spoken about. And is it of one thing, or in BK, the senior BKs that have hidden the father, or is it the defamation of the father himself? What about the ones? Is it the defamation of the BKs that have defamed the father, or the defamation of the father himself? बाबा जो ग्लानी जो बोलते हैं ना, ग्लानी बाप का है या बीके लोगों का ये
ग्लानी, जो ग्लानी शब्द है वो किस ग्लानी का जो बॉम्ब बोलते हैं ना, ग्लानी का बॉम्ब आखिर किसका? ब्रह्मा कुमारियों का या बाप का? ग्लानी का बॉम्ब किसके द्वारा? वो जो ग्लानी का बॉम्ब बोलते हैं वो आखिरी ग्लानी है किसकी? बाप का ग्लानी है या बीके वालों की ग्लानी? बीके माना ब्रह्मा कुमार, सिर्फ अम्मा कुमार है, वो बाप का पता ही नहीं। पता नहीं। वो उसी साबित हो जाता है कि प्रवृत्ति अधूरी है। अच्छा, वो वैशाल है। अच्छा, उनको बाप का पता है, बोलने की तो विद्या है यार। तो संभव हो सकता है कि वो प्रवृत्ति के पक्के देवता धर्म के उसमें से निकले। दुनिया में भी जब माँ का पता नहीं होता है किसी बच्चे को तो अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, तो बाप का पता नहीं। DK means Amma Kumar, children of just the mother. They don't know the father, so that is not proper household. So it is not household. It will become Vaishyale, a brothel. So even in the Laukik world, outside world, if they don't know who their father is, they are not looked upon. The society doesn't look upon them in a good way, in a nice manner. You should always know who the father is. So the declamation is about that. तो क्रिश्चियंस का फाउंडेशन ही ऐसे ही पड़ता है। Christians का, Baba is telling the foundation of the Christians is laid in this way. किस तरह से वो? क्राइस्ट का बाप कौन था? पता नहीं। हाँ, तो ब्रह्मा कुमार कृष्ण और क्राइस्ट ही मिलाई जाती है। So Baba is telling, if you ask the Laukik Christians, who is the father of Christ, they say no, he didn't have any father. So the same way the zodiac of Brahma Kumar and that of the Christians match. It's the one who have hidden the father who had his slave. Yes. तो बाबा पूछ रहे हैं, तो जो ऐसे बाप को छुपाया है उन्हीं का ग्लानि होगा ना? बिल्कुल। यस, बाबा इस तरह से छुपाया है की बात नहीं, बताने से भी मानने के लिए तैयार नहीं। Baba is telling it is not about that they have hidden who the father is. Even after revealing that he is the father, they are not ready to accept. They are not believing. They are not ready to accept. They are not accepting. चाहे भगवान भी आकर के बताए तो भी मानने के लिए तैयार नहीं। Even if the Almighty Himself comes and explains, still they are not ready to accept the fact. Almighty को तो ब्रह्मा के थ्रू साकार में मानते हैं ना। The Almighty they accept through the corporeal, through the medium of Brahma. ब्रह्मा ने खुद कहा प्रजापिता शब्द लिखो, अपने नाम से पहले प्रजापिता शब्द लिखो। Brahma himself said that you write the name of Prajapita in front of the name of Brahma. PK. Still When Mama left the body. मतलब मम्मा शरीर छोड़ने के बाद ये बात है ना प्रजापिता। हाँ जी हाँ जी। Yes. That will be through Jagadamba. Which part? Well, they believe Through Jagadamba means? They won't believe in the Father being the, they don't believe in the Father. They will believe in Jagadamba hosting. Yes, I got you. तो यहाँ पे तो वही काम जगदम्बा के माध्यम से नहीं चल रहा है कि मतलब भगवान का रूप जो है जगदम्बा को ही मानते हैं, उन्हीं का बात मानते हैं, बाप को नहीं मानेंगे, ऐसे यहाँ हो रही है क्या? रुद्रमाला में हर तरह के बीज है। Baba is telling in the Rudramala there are seeds of all kinds. So what you said and what Baba is explaining, yes, such souls are present in Rudramala also. Maya is Dadi Prakashmani. Okay.
and Prem Kanta in PBK. It's fine. Nadi Prakash Mani is going to leave the body soon. Okay. So we all believe that she needed to surrender first. Or is it that she's going to enter Prem Kanta and play, and Prem Kanta is going to surrender? बाबा जो माया सरेंडर होगी जो बात कहते हैं बीके के तरफ से तो दादी प्रकाशमणि के लिए बोलते हैं माया बेटी करके, लेकिन आज नहीं तो कल बहुत जल्दी दादी को तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन ये जो माया सरेंडर होगी जो बात आई है, छोड़ने से आत्मा का अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो पूछ रहे तो क्या प्रेम कांड में प्रवेश करके वो सरेंडर होने का पार्ट बचेंगे? हो सकता है। एंड बाबा इज टेलिंग the soul will not lose its characteristics by just leaving the body. It will retain the characteristics. So it will influence. It will influence the Maya, PBK Maya. So वो जो आत्मा है जब शरीर छोड़ेगी PBK में जिसमें भी प्रवेश करेगी, भले वो PBK की तरफ से माया हो, उनको भी प्रभावित करेगी क्या? वो बाबा is telling is जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझेगी तब तो प्रभावित होती रहेगी। So Baba is telling until the PBK one, until she doesn't understand the knowledge totally, she will be influencing the PBK one. Achha. So is it when she understands, she realizes what she's done, she surrenders, and is it where she's becoming Mahalakali with they play the role of Dharamraj, Jagannath. बाबा ये पूछ रहे वो अपने पार्ट को समझेगी, पहचानेगी, तो वही पार्ट है क्या महाकाली धर्मराज का? कौन? जो माया बेटी, जो महाकाली का जो पार्ट बजाएगी, जब अपना पार्ट को पूरा पहचानेगी सच्चाई से, तो तभी धर्मराज का पार्ट उनसे बजेगा क्या? माया के द्वारा धर्मराज का पार्ट क्यों बजे? बाबा इज आस्किंग how can the role of Dharmaraj be played through Maya? Or Mahakali, which might be different from Dharamraj. तो महाकाली का जो पार्ट है धर्मराज से अलग है क्या? महाकाली तो विनाश के निमित्त है, अनिश्चय बुद्धि बनाने के निमित्त है, responsible for making अनिश्चय बुद्धि महाकाली। So both Jagannava and Maya. तो जगदम्बा और माया बेटी दोनों ये पार्ट बजाएंगे क्या? बताया गया कि जगदम्बा माया बेटी दोनों मिलकर के रावण का पार्ट बजाते हैं। बाबा इज टेलिंग जगदम्बा एंड महाकाली both will combine to play the role of Ravan. महाकाली महाकाली जलवायु क्या था? 5 elements. And Mahakali and Maya, 5 vices. yes, so that's 10 of Ravan. जो पिछले मूर्तियों में बताया गया कि ब्रह्मा के द्वारा बजाया होगा, अभी बजाया जाएगा। हाँ, बजाया जाएगा। तो अभी डिस्कशन में या मूर्ति में नई पॉइंट निकला कि अष्टदेवों में से एक जो ब्रह्मा हमेशा थोड़ी बना रहेगा। ब्रह्मा का जन्म हो जाएगा तो धर्मराज का पार्ट कोई तो किसी को तो हैंड ओवर किया करेगा। You got the point, a very important point. Well, it is just finish off. This is a very important point. Baba is telling, well, the role of Dharmaraj, well, it can be said that it is being played through the soul of Krishna. But when Krishna takes his birth in 2018, he will hand over his role of Dharmaraj to somebody. So it is one amongst the Ashtadevas to whom he will hand over. Yes. बाप तो प्रेसिडेंट है, बाप
प्यार का सागर है। धर्मराज का पार्ट जो है वो बाप का नहीं है, बाप के साथ धर्मराज, और जो धर्मराज साथ में है वो रिगार्ड के बतौर प्रेसिडेंट का ज्यादा रिगार्ड रहता है। चीफ जस्टिस का भी रिगार्ड रहता है, लेकिन चीफ जस्टिस जल्दी जल्दी बदलते हैं। अच्छा अच्छा। अब बाप आदि से अंत तक प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट तो धर्मराज तो चीफ जस्टिस है ना? धर्मराज चीफ जस्टिस है, तो बदलने की बात है। अब ब्रह्मा जाएगा तो चीफ जस्टिस बदलेगा। अच्छा बदलेगा। बदलेगा, लेकिन कौन सी आत्मा है जो ये पास्ट पूछा करती है? जो स्ट्रिक्ट हो रूल एंड रेगुलेशंस में, लव की कोई बात नहीं चलती है, भावना नहीं चलती है चीफ जस्टिस के सामने। ला इज ला। कौन सी ऐसी आत्मा है? अष्टभुजों में अब अष्टदेव जो पावरफुल हो, जितना पावरफुल होना चाहिए ना, उसके भावना को नहीं मानेगा। बाप तो प्यार का सागर, वो तो गया, वो तो सूर्यवंशी, और उसके बाद चंद्रवंशियों से वो माँ का पार्ट हो गया, वो तो लवफुल होता है ही। उसके बाद आता है इस्लाम धर्म, तो कायदे कानून एकदम पक्के होते हैं। She asked a question. Who amongst the 8 deities? She was asking. Baba said, Father is the ocean of love, and Father is the president. Before that, Baba began with Father is the president. The regard will be there for the president, and Father will be the one and the only one from the beginning till the end. But the regard will be there for Chief Justice also, and Chief Justice will not take into consideration any of your emotions. Your emotion, No love, no love. sentiments. He will have no sentiments, no care for all your sentiments. Law is law. Law is the ultimate. And Baba was telling that Chief Justice will be changed. So I asked how. Dharmaraj should be one. No? When Brahma goes, he will hand over the role to somebody. No? So he becomes the Chief Justice. So the Chief Justice gets changed. But Father will be the one and only one from the beginning till the end. So Baba was telling, so she was asking who amongst the Ashtadevas is the player of Dharmaraj. So Father will not be Dharmaraj, and he's from the Suryavansh. You leave him. Who is the next? It is the mother who is from Chandravanshi, and she will be always giving the love and is giving the love. And the one who is who is very powerful. The next comes the Islam. The law and regulation are very strict there. That is Islam. Islam religion. You have very strong, very strict. So is this like the third of the Ashtadevas? The one from the Islam dynasty. बाबा, जब कहा जाता है कि अष्टदेवों को अंतिम जन्म में गिरना पड़ता है कोई धार में, तो इसका मतलब ये है कि वो आत्माएं उसी धार में जन्म लेते हैं। नियर बाई। So she was asking, when the 8 deities fall, so will they be falling in that very particular religion? Baba said nearby. Nearby. Nearby का मतलब किस? नियर बाई का मतलब भारत में इस्लामी नहीं है, ठीक है, मुस्लिम्स हैं। हाँ। लेकिन मुस्लिम इस्लामियों के से ज्यादा प्रभावित होने वाले कोई परिवार तो होंगे। अच्छा, हाँ। उस परिवार में जब Baba is telling, in India Islamis are not there. We have got the Muslims. So that soul will take its birth in the family which is influenced by these Muslims.
तो इसका मतलब यही है कि वो आत्मा भारत में जन्म लेती है। ठीक है, ये सभी के लिए लागू होता है। जो अष्टदेव में होंगे ये सभी के लिए लागू होता है। देवताएं तो होते ही देवताएं तो होते ही भारतवासी होना ही चाहिए, आदि से अंत तक भारतवासी। आखिरी जन्म में ऐसे स्वभाव संस्कार वाले परिवार में जन्म, मतलब जो चिल्का चढ़ेगा वो परिवार की वजह से चढ़ेगा और क्या। मतलब उनका जो परिवार जन है वो निमित्त बनेंगे उनको वो चिल्का चढ़ाने में। वंशानुक्रम का असर बैठता है ना, वंशानुक्रम का भी असर पड़ता है ना। So I asked the question, the family in which they are born, will they be responsible for that skin of the 8 deities? I asked. Baba said yes. The dynasty is also the lineage is also responsible for that. Lineage the children. They will take the birth in such a family which will influence to attain those sanskars. मेरा प्रश्न ये मतलब ये है कि अगर मूल्यों में बताया लोगों ने कहा कि वो आत्माएं कहाँ भी जन्म ले सकते हैं, ये कहाँ भी जो या कोई धर्म में भी जो लास्ट जन्म में वो गिरते हैं, लेकिन वास्तव में उनको भारत ही जन्म लेना पड़ता है। भारत में हर धर्म के लोग मौजूद है। So she was asking whether they might go and play their part wherever they want, but in the end, will they take their birth in Bharat itself? So India has got the population of all the kinds. Baba said, being deities, they will have to take birth in Bharat, the land of deities. वो जो 108 में आने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के लिए ये लागू होता है कि जरूर उनको भारत में ही जन्म लेना पड़ता है। जो भारतवासी होते हैं वो भले कहे जाते हैं डबल विदेशी, क्योंकि भारत में ही भारत का विदेश मौजूद है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो विदेशों में जाके राजाई करते हैं, भारत में ही राजाई करते हैं। भारत में ही राजाई करते हैं, लेकिन अंतिम जन्म में भारत में अंतिम जन्म में भी भारत में ही, भारत में ही धर्म से प्रभावित परिवार मौजूद है। विदेशियों से प्रभावित परिवार भारतवर्ष में ही मौजूद है, तो बाहर जाने की क्या दरकार। जन जन्मांतर राजाई भी उनको भारत में ही कर रहे हैं। 108 की बात है। She was asking about the 108 schools. They will be enjoying their kingship in India itself, because India has got the kingship of all the religions. And I asked also about the last birth, whether it has to be in Bharat. Also. मतलब आखिरी जन्म उनका भारत में होना पड़ता है क्या? 108 वाले हैं, हर जन्म उनका भारत में ही है 108 वाला। हाँ, लेकिन वो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होकर के रहते हैं बीच में। जो दूसरे धर्म के ग्रुप हैं वो विदेशी धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो भारतवर्ष में ही वो सब। विदेश में जाने की क्या दरकार? There is no need for them to go to the foreign countries, because India has got
the souls of all the religions. इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्व में सेवा नहीं करेंगे, विश्व में घूम के सेवा करेंगे, लेकिन उनका आखिरी जन्म जो होता है वो भारत में होता है, और बीच वाले जन्मों में भी भारत में ही रहते हैं। So Baba is telling it is not that they will not go throughout the world to do service, but the last birth will be in India and the middle births will also be in India. Because the last birth is important, it's like crucial to तो बाबा पूछ रहे तो आखिरी जन्म बहुत मुख्य मायना रखता है ना, आखिरी जन्म का जो भी है वो बहुत मायना रखता है। 62 जन्मों का निचोड़ जाकर के उधर पड़ता है। Baba is telling the essence of the 62 births will fall in there. Last birth. In the last birth. Okay. The 4 main children of God is Sanandan, Sanatan, Sanatkumar, etc. So one is Shiv Baba, and the 3 others have revealed the Father but betrayed them. Yeah. Okay, and so sometimes it says that the 3, they play a big role, and sometimes it says they only will get a kingdom at the end, and they will become Das-Dasi in Satyug. So it means the biggest are the most are falling the most. So is that like the same like we say Prajapita has fallen the most and gone the most. But for them, they won't get a reward. They won't go up. So it's not the same For them. for them. But they did their disservice, no? They That did is- this, yes, they did That is disservice. that is why they failed on. So how can they be called the 4 men, the 3, like they play a big role and तो बाबा जो मुख्य पार्ट बोलते हैं ना, राम का 4 भाई जैसे बोलते हैं ना, वो मुख्य पार्ट वास्तव में कहा जाएगा उन लोगों का, क्योंकि राम बाप तो सबसे नीचे गिरते हैं और सबसे ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन उनको जब सबसे ऊपर चढ़ने का टाइम होता है दास-दासी का पार्ट बजाना पड़ता है, एकदम खंडित गद्दियां मिलती है, खंडित गद्दियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी तो जाते हैं सूर्यवंश में। Baba is telling even though they get what do you say, mutilated position, depleted position, still they become Suryavanshis now. Nashtadevan के रूप में, as Nashtadevs, the one responsible for destruction. You have got 12 of the Suryavanshis, no? Leave the 8, for the 4 are remaining. So they are the Nashtadevs, the destruction part. responsible So for is that in the 8 is it 4 for establishment, for sustenance? sustenance. तो बाबा पूछ रहे अष्टदेव में 4 स्थापना वाले और 4 पालना वाले हैं क्या? Yes. So what I don't understand is one is represent Islam. Islam. One Christian and one Buddhist. Buddhist. Yes. Okay. So Buddhist is not represented in the picture. Which one? The picture of the ladder at the end. Ram is begging, and there are only 2. Why? बाबा पूछ रहे हैं 3 प्रमुख धर्म हैं, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, लेकिन जब 3 प्रमुख विधर्मी हैं। विधर्मी है, बौद्ध धर्म को क्यों नहीं दिया? क्या नहीं दिया? भीख देते हुए। बौद्ध धर्म को विदेशी थोड़ी है, विदेशी भीख दे रहे हैं। बाबा is telling the foreigners give the alms. बौद्ध धर्म is not विदेशी। बौद्ध आ रहे हैं भीख मांगने वाले। Buddhists are the ones who keep on begging alms from the beginning till the end. Have you seen the Buddhist monks? They always go on begging alms. How can Bhikkhu? बौद्ध भिक्षु। Bauddha Bhikshu. भिक्षु है भिक्षा। So how can they be the ones who will be giving alms? They are the ones who will be begging alms. So that is why they cannot be shown to be the giver of the alms.
But so they had a passive role. They had a passive role. The one who represents the Buddhist, he was there. Yep. He had a passive role. He wasn't going against, but he wasn't also preventing. तो मतलब वो जैसे न्यूट्रल हो गया ना बाबा बौद्ध धर्म वाला, हाँ विरोध तो नहीं किया लेकिन मतलब सपोर्ट भी तो नहीं किया ना, ऐसे पार्ट हो जाए ना बौद्धियों में। सपोर्ट किसको नहीं किया है? राम बाप को। एक विधर्मियों को तो सपोर्ट कर दिया है। बाबा is telling he supported the Vidharmis. बाबा पूछ रहे हैं कि and said okay I've surrendered. Because that मतलब बाप के साथ उनको भी प्रतिरोध करना चाहिए था। So Baba, so I said, so they had to counter the Vidharmis along with the father, no? So Baba said that's what they had to do, but they surrendered. because the quality is to be coward. It's we said in the course, that quality is to be coward. तो कायरता वाला संस्कार उन्होंने दिखा दिया। हाँ जी, yes, Baba is saying yes. So They showed their character. in order इसलिए तो लक्ष्मण को भी दासियों का काम करते हुए दिखाया है। That is why the soul of Lakshman in the scriptures has been shown to be doing the duty of the das-dasi, always serving. अब रामायण में राम के दो पुत्र हैं, राम और कुश। जब राम क्या ये how do you call this अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो पुत्र घोड़े को पकड़कर अपने पिता से लड़ते हैं। तो क्या वही अगर है जब अभी बाप के पास से अपने बाप को बाप से विरोध बन जाते हैं और से लड़ते हैं। कैमरा स्क्रीन बोलिए कौन सा है? ऑनलाइन कौन सा है? सवाल में आ रहा है। मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। कौन सा? जल्दी बोलिए। अभी जब क्लास हो रहा था वार्तालाप हो रहा था उसमें टेंशन नहीं अब 5-7 मिनट में पहुँचो 5 मिनट में पहुँचो दो दिन एडजस्ट कर लीजिए और 22 तारीख को बेंगलोर पहुँच रहे हो और पार्टी पहुँच रही है माँ बाप भी पहुँच रहे हैं। हाँ जी आठ नौ क्यों बच जाएगा? अब ये अभी छोड़ करके वापस आ जाएंगे। ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. कौन नाराज होता है? ಎರಡು ದಿನ ಅವನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಾಯ್ತು लगभग देर हो जाए तो मत भेजना फिर। वो लक्ष्मी माता के साथ नीचे बनी रहेंगी टीवी में क्या? हाँ जी तो लिख देते हैं हम बाबा से। हम जो क्लैरिफिकेशन लेने जा रहे हैं कहीं।
कहीं भी कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। अरे लेट हो जाए तब ना, जब टाइम से पहुंच जाए फिर क्यों? अगर लेट हो जाए तो बोलना। बता देना उनको। अगर लेट हो जाए 8 से ज्यादा, 8:30 से ज्यादा टाइम हो जाए, कहाँ पे? विजय विजयविहार पहुंच गए, बता देना। ठीक है। हैं? आप बचने वाले। हाँ जी, अभी इनका कर लीजिए। हाँ जी। क्या होगा आगे? Just 1 or 2 questions. You're almost. Any 1 or 2 questions? You're almost. What? मैंने पूछा। दोबारा बोलिए। हाँ? दोबारा पूछिए। लक्ष्मण की बात कुछ चल रहा था। नहीं। अश्वमेध यज्ञ की बात चल रहा कुछ और हैं? जब लड़ते हैं अपने बाप से। था। अपने बाप से लड़ते हैं ना। हाँ जी। अल्लाह को सही अश्वमेध यज्ञ में लड़ते हैं क्या? अश्वमेध यज्ञ को घोड़े को बांध घोड़े लेते को हैं। बांध करके कौन बांध लेता है? ये 2 बात। अल्लाह को पुरुष बांध लेते हैं। हाँ। हाँ जी। तो वो यहाँ पे है जब घोड़ा है क्या? हाँ, घोड़ा क्या चीज है? बेहद हाँ, मनोरूपी अश्व है। हाँ। ब्रह्मा की सोच तो विदेशियों को पसंद करती है ना। हाँ। जो भी कामी कुत्ते हैं उनको पसंद करती है ना। हाँ। तो वो उनको पाल लेती है। जैसे घोड़ा बांध लिया, घोड़े को उन्होंने अपने वश में कर लिया। लेकिन बाप से तो लड़ते हैं। हैं? अपने बाप से लड़ते हैं, राम से लड़ते हैं। हाँ। जब घोड़ा उनके पक्ष में है तो लड़ाई होगी ना। घोड़ा उनके अंडर की कंट्रोल हो गया। घोड़ा माने ब्रह्मा, उनके अंडर की कंट्रोल है तो लड़ाई तो चलेगी ना। चल रही है। और ये प्रश्न है जब आर्य समाज की आत्माओं के लिए बताया गया कि अलग अलग धर्मों से गुजरते उन पर बहुत मोहशील का छाया हुआ है, लेकिन दूसरी ओर प्रजापिता और अपने साथी आत्माओं के साथ अलग अलग धर्मों भी आते हैं, लेकिन उन आत्माओं के ऊपर इतना छिलका नहीं चढ़ता है। तो किसी धर्म से गुजरते हुए नहीं आते? आर्य समाज को सभी प्रजापिता और प्रजापिता के जो सहयोगी अष्टदेव है, हाँ, वो तो कोई धर्मों से गुजरते हुए नहीं आते। लेकिन जब राज्य स्थापन करते हैं तो उन आत्माओं को उस धर्म ही जन्म लेना पड़ता है। जैसे बोधि धर्म में राज्य स्थापन करते हैं तो उनको उस धर्म में जन्म नहीं लेना है। और दूसरी धर्म जब क्रिश्चियन धर्म या इस्लाम धर्म या कोई भी धर्म जब उन धर्म की राज्य स्थापन करते हैं तो उसी धर्म में जन्म लेते हैं, फिर भी इतना प्रभावित नहीं है। फिर भी अलग अलग धर्मों से इतना प्रभावित नहीं है जैसे आर्य समाजी आत्माएं। तो ये इसका कारण क्या है? क्या कारण? कि आर्य समाजी आत्माएं इतनी प्रभावित। आर्य समाजी आत्माएं तो जन्म लेती है, जन्म ही नहीं लेती है, उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये अष्टदेव तो उसी जन्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये तो जन्म लेते हैं जाकर के। जन्म लेने को कन्वर्सन थोड़ी कहा जाता है। హలో చెప్పండి. ఈ వారం వచ్చాను. నేను ఆమెకి పెడతాను బాయ్. రేపు